Good morning to all of you. You're watching the morning news at CNN News 18 and I'm Shriya Kundu here to walk you through all the top stories for the day from across the nation and around the world. After 8 hours of questioning, he has finally been arrested. Actually, Manish Sisodia was confronted with documents that had statements of several of the accused and witnesses in this case. एक शरीफ आदमी है मनीष, उनको आज इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। तो हम देख रहे हैं किस तरह से पूरे देश के अंदर देशभक्तों को, अच्छे लोगों को, ईमानदार लोगों को तो पकड़ पकड़ के जेल में डाल रहे हैं, और जिन लोगों ने अरबों खरबों रुपए लूट लिए बैंकों के और इनके, वो इनके दोस्त हैं। मनीष जी, दुख होता है कहते हुए, you played with the lives of our kids. The war would be fought in the battleground of courts. There is merit in the case of Manish Sisodia's corruption in excise policy. Moving right into the top story for the day, the big story. After over 8 hours of questioning by the CBI yesterday, Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia was arrested in the alleged liquor scam case. He will be produced in Delhi's Rouse Avenue court today. According to sources, Sisodia was arrested by the CBI after he failed to answer some of the questions based on documents. Another major charge on Sisodia was that he has destructed several mobile phones after the probe began. Meanwhile, war of words have erupted between the AAP and the BJP. AAP has claimed that it's just a political vendetta and dirty politics that is being played out. BJP, on the other hand, has said that the real kingpin of the scam is Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal, and Manish Sisodia is just a pawn. एक शरीफ आदमी है मनीष, उनको आज इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। तो हम देख रहे हैं किस तरह से पूरे देश के अंदर देशभक्तों को, अच्छे लोगों को, ईमानदार लोगों को तो पकड़ पकड़ के जेल में डाल रहे हैं, और जिन लोगों ने अरबों खरबों रुपए लूट लिए बैंकों के और इनके, वो इनके दोस्त हैं। पूरा देश देख रहा है, लोग देख रहे हैं, और लोग ही इसका जवाब देंगे। मैं और मान साहब अभी उनकी वाइफ से मिलके आ रहे हैं। देश को, पूरे देश को मनीष जी के ऊपर गर्व है, और हम सब एक परिवार की तरह हैं और सब उनका ख्याल रखेंगे। जहां तक होलसेलर की कमीशन का विषय था, पहले जो कमीशन 2% का था, उस कमीशन को बढ़ा करके 12% का कमीशन किया गया था। Everyone knows as to how to enhance their own commission. The Aam Aadmi Party had tried its best to spread addiction of liquor in Delhi. They have 500 officers who are investigating this case, and yet after investigation by 1 year, they still have no evidence against Manish Sisodia. So now they are claiming all kinds of frivolous charges, but we were well aware of this fact. Why? Because this is a political case. This case has nothing to do with any investigation. This case has nothing to do with any policy. This case has to do with the fact that Bharatiya Janata Party is scared of the growing popularity of Aam Aadmi Party, and this is the reason why today Manish Sisodia has been arrested. 8 घंटे की पूछताछ के बाद दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को, जो शराब घोटाले में आरोपी थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। किसी ने सही कहा है कि अपराधी चाहे लाख बचने की कोशिश करे, साक्ष्यों को नष्ट करने की कोशिश करे, लेकिन इस देश की जांच एजेंसियां, कानून अपराधियों तक पहुंच ही जाती हैं। अभी तो इस शराब घोटाले में मास्टरमाइंड तक पहुंचना भी बाकी है। मैं समझता हूं ये जुर्म की इंतहा है, ये तानाशाही की इंतहा है। ये एक ऐसे शिक्षा मंत्री पर कार्रवाई है जो दिल्ली के लाखों बच्चों के लिए दिन रात मेहनत करके उनका भविष्य बनाने का काम कर रहा था। मोदी जी, आपने अच्छा नहीं किया।
मैं फिर से कह रहा हूं, आपने गुनाह किया है, पाप किया है। आपकी हिम्मत है, जिस अडानी ने लाखों करोड़ का घोटाला किया, आपका मित्र, आपका दोस्त, उसके खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत है, उसका नाम लेने की हिम्मत है आप में। आपकी तानाशाही का अंत जरूर होगा मोदी जी। और ये करोड़ों लोग जो आपके अत्याचार को देख रहे हैं आज, ये समय आने पे आपको जवाब देंगे। मैं कहूंगा ये मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी नहीं है, लाखों बच्चों के भविष्य की और उनकी उच्च शिक्षा की अवमानना है। क्योंकि स्कूलों में अक्सर लिखा रहता है, अगर आप छोटों के लिए स्कूल बना दोगे तो बड़ों के लिए जेल बनाने नहीं पड़ेंगे। लेकिन स्कूल बनाने वाले को जेल भेजना, ये सिर्फ बीजेपी का एजेंडा ही हो सकता है। वो नहीं चाहते कि देश शिक्षित हो, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो पढ़ गए, वो सोचने लगेंगे तो जो हमारा नफरत का एजेंडा है उसको समझने लगेंगे, फिर हमें वोट कौन डालेगा। सत्येंद्र जैन के बाद केजरीवाल का दूसरा भ्रष्ट मंत्री मनीष सिसोदिया शराब घोटाले में, कमीशनखोरी में, नशे का धंधा करने में, चोरी में, रिश्वतखोरी में आज सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है और अब जेल जाना होगा। मैं पिछले लगभग 5 साल से ये बात बोल रहा हूं कि सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल तीनों भ्रष्ट हैं और तीनों को एक ना एक दिन जेल में जाना ही पड़ेगा। आज इन तीनों में से 2 लोग भ्रष्टाचार में, चोरी करते हुए पकड़े जाने के कारण जेल जा चुके हैं। और मैं ये ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूं कि सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया के बाद भ्रष्टाचार में जेल जाने का अगला नंबर अरविंद केजरीवाल का होगा। जिस तरीके से केंद्र सरकार काम कर रही है, सारी की सारी एजेंसियां भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में लिखी हुई स्क्रिप्ट के अनुसार काम कर रही हैं। कोई सबूत नहीं, उनके घर पे 1 रुपया नहीं मिला, उनके गांव में कोई जायदाद नहीं मिली, 500 छापे मारे, मनीष सिसोदिया के खिलाफ एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं मिला। नरेंद्र मोदी जी का शासन समाप्त करने वाला आदमी अरविंद केजरीवाल बनेगा और ये बात सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी जानती है और समझती है, इसीलिए आज अरविंद केजरीवाल के पीछे पड़े हुए हैं। डर उसी को लगता है जिसने कुछ किया हो, जिसने कुछ नहीं किया होता उसको डर नहीं लगता। और जिस प्रकार से घोटाला सामने आया, हम तो शुरू से कह रहे थे कि मनीष सिसोदिया इसके अंदर इन्वॉल्व है। अब चूंकि वो डर रहे थे कि उन्होंने बहुत कुछ किया है इसलिए उनकी गिरफ्तारी होगी, उनकी ये जो डर है उनका कहीं ना कहीं सच साबित हुआ है। लेकिन सवाल ये है, उनको बहुत सारी चीजों के जवाब देने होंगे। और हमारा मानना ये है कि असली किंग पिन जो है वो अरविंद केजरीवाल है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के कहने के अलावा कि कभी इस सरकार के अंदर काम नहीं होता है। जो अरविंद केजरीवाल कहते हैं वही होता है। इसलिए मेरा मानना यह है, मनीष सिसोदिया जी तो सिर्फ एक मोहरा है, असली किंग पिन अरविंद केजरीवाल है। मनीष सिसोदिया की ये गिरफ्तारी ये साबित करती कि जो बात लगातार कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ता उठा रहे थे कि भ्रष्टाचार हुआ है, शराब नीति जो बनाई गई, जिस शराब नीति को लेकर के कांग्रेस पार्टी सवाल खड़ा कर रही थी, आज वो सही साबित हो रहा है। अफसोस इस बात का है कि जब देश और दिल्ली के अंदर संक्रमण फैल रहा था, कोविड फैल रहा था, मनीष सिसोदिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब नीति पर काम कर रहे थे। जहां एक तरफ ये शराब माफिया के साथ बैठ के शराब नीति पे काम कर रहे थे, भाजपा के 8 एमएलए, 7 सांसद और 150 से ज्यादा पार्षद भी इनके साथ सहयोगी बनकर का साथ दे रहे थे और कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतर के इनकी पोल खोल रही थी। कानून ने अपनी ईमानदारी के साथ काम किया तो दिल्ली के मुख्यमंत्री भी सलाखों के पीछे होंगे, क्योंकि अपराध करने वाले से बड़ा अपराधी अपराध कराने वाला होता है। Well, it's very obvious that Monish Sisodia was to be arrested because if man is not giving the answers or not giving the proper answer to the CBI, so they have to confront him with the witness and also with Dinesh Arora who has now told a lot of things about how money was transacted. So let's see how does it go further, but let the truth come out, how money from the southern liquor barons came here and how the money was transacted for electoral objectives in Goa and other states. दिल्ली सरकार के माननीय उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी वैसे समय में केंद्र सरकार के नाक के नीचे बैठकर एमसीडी चुनाव में भाजपा को पराजय का सामना करना पड़ा, तो कानूनी प्रक्षेत्र में अनियमितता की कोई अगर शिकायत है तो वह कानून का मामला है। प्रचार के लिए, विरोधियों को हतोत्साहित करने के लिए
एक राजनीतिक एजेंडा के अलावा कुछ भी प्रतीत नहीं होता। को गिरफ्तार कर लिया गया, वो दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। अभी हमारा प्लेनरी सेशन था रायपुर में, वहां पे ईडी ने छापे डालने शुरू कर दिए। लगता है कि डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है, देश में तानाशाही है, तमाम एजेंसी सरकार के दबाव में काम कर रही है, विपक्ष को खत्म कर देना चाहती है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। डेमोक्रेसी के लिए सारे विपक्ष को एक साथ आना होगा और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से और प्रधानमंत्री से बड़े अदब के साथ कहना चाहूंगा, इस गलत फहमी में मत रहिए कि हमेशा सत्ता आपके पास रहेगी। देखिए, जो बीजेपी है, जो सेंटर सरकार है, वो आम आदमी पार्टी से बुरी तरह घबराई हुई है। आम आदमी पार्टी के 10 साल के छोटे से कार्यकाल में आम आदमी पार्टी देश में सबसे तेजी से बढ़ती हुई पार्टी है, क्योंकि बीजेपी नहीं चाहती कि देश के बच्चे पढ़ें। बीजेपी देश के बच्चों को अनपढ़ रखना चाहती है और इसीलिए ऐसा षड्यंत्र रखा है। मनीष सिसोदिया जी बड़े कट्टर ईमानदार व्यक्ति हैं। मनीष सिसोदिया जी लगातार जो है वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का साथ दे रहे हैं। कानून अपना काम कर रहा है और ये निश्चित रूप से ये भी साबित हुआ कि कानून से बढ़कर कुछ नहीं है। आप कितना भी ड्रामा कर लीजिए, कितना भी इवेंट बना लीजिए, लेकिन शराब के घोटाले में मनीष सिसोदिया की भूमिका की जांच हुई है और कानून ने अपना काम किया है। आगे देखा जाएगा। 2% कमीशन को 12% क्यों किया? शराब की काली दलाली खाने का ये एक प्रयास था। पूरी दिल्ली के बच्चों को शराब के नशे में क्यों घोला इन्होंने? ये शराब की काली कमाई कमाना चाहते थे, उसमें ये लोग शामिल थे, इसलिए कानून अपना काम कर रहा है। देखिए, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक मनीष सिसोदिया जी जैसा व्यक्ति, जिन्होंने सिर्फ दिल्ली के ही नहीं पूरे मुल्क के एजुकेशन सिस्टम को एक नया रास्ता दिखाया है, आज उनको झूठे केसों में उलझाया जा रहा है। केंद्र का, बीजेपी का अब एक ही निशाना है कि किसी तरीके से अरविंद केजरीवाल जी की पॉपुलैरिटी को दबाया जाए, क्योंकि उनको पता है, आज सारा मुल्क ये जानता है कि अगर भाजपा के, मोदी जी के और केंद्र की आंखों में आंखें डाल के अगर कोई दिलेरी के साथ, अगर कोई ईमानदारी के साथ बात कर सकता है तो वो अरविंद केजरीवाल जी, और इसी चीज़ से वो डरते हैं।